Ladies and gentlemen, today is truly a wonderful day. Even path-breaking, some would say. I am Archana Vijaya, and I'm delighted as I welcome you all for the announcement for the Care for Hockey campaign by Bajaj Allianz General Insurance. If there is one sport that has defined the culture of sports in our country, it is definitely hockey. I'm sure you all are aware of the feats that our hockey teams have achieved in the Olympics, with the hockey men's team winning a bronze and the women's team just about missing out, but doing us so proud and winning so many more hearts, fans, and of course, well wishers. To celebrate all of this, we're here today to ensure that we do our bit and more for the game of hockey. Without further ado, I bring to you the man who needs absolutely no introduction. A dynamic and versatile corporate leader, he holds a rich experience of 3 long decades in the insurance industry and is one of the founding members of Bajaj Allianz General Insurance, one of the largest general insurance companies in India. He has been heading the company as its MD and CEO for close to a decade now, and he has many recognitions to his name. He recently won the Lifetime Achievement Award at the 25th Asia Insurance Industry Awards 2021. He's an award-winning CEO, a leader who was awarded Personality of the Year multiple times and was consecutively featured in the LinkedIn Power Profiles. These are just a few awards from a long list of recognitions bestowed upon him. A scientist by education, but insurer at heart, who works towards making a difference in the lives of people in whatever way he can. I am truly proud to present to you none other than Mr. Tapan Singhel, the MD and CEO of Bajaj Allianz General Insurance Company Limited. Thank you, Archana. Good afternoon, Mr. Singhel. How are you today? Good, Archana. Very happy and excited for today. I think it's a very important event from my perspective. Absolutely. And are you charged up about what's in store today? Can you give us a little bit of a hint? Yeah, Archana, I think when I was growing up as a child, hockey was a passion. In fact, I was the captain for the hockey team for my school also in those days. And I used to get super excited listening to the hockey commentary happening or listening story of Dhyan Chand and how things were going forward. And then I moved on to the corporate world, did business, and we did a lot of work in other areas. But hockey slipped my mind. And then I was watching the Olympics and we saw a men's hockey team win the bronze. And more than that, I saw a women's hockey team really fight it out. They made us so proud. And at the last moment, I think we just missed it by a whisker. And that is the time I felt that are we doing enough for helping budding talent and their ambitions to be fulfilled and they could do what they want to do. And obviously the end result can be and maybe that we make a lot of name for ourselves in the world. Our team would get the medals and they would win the gold medal from Olympics and they would shine everywhere. But that's the end result. The idea was when you look at stories where people from very humble background, because they were struggling for opportunities and when provided, they made a huge difference. We were thinking that can we make a difference at the root level? No? Can you make a difference where people's passion and ambitions cannot and should not get wasted because opportunities are not there? I think that as a country would be very sad for us. India is a marvelous country. It has so much talent, so much excitement. But just because opportunities are not there, does that get stifled out? I think then I was speaking to my team and we said we should make a difference there. We should make a difference at this root level if this is one learning that we have from this incident as we watched hockey. And I was very happy and proud of my team. They all got super excited. So instead of looking at people and figuring out things out, they on their own start figuring out how can we do that, how can we make a difference. And the attempt is to make a difference at the root level, where in the future, we should be in a position where somebody has an ambition and that ambition cannot get stifled because resources are not there. So this was the idea, Archana, behind this thought process that we had. And that's why I said I'm very excited for today. Tapan sir, as I said earlier, it is path-breaking. More and more corporates will get encouraged by this wonderful step that you are taking. I'm so excited about the announcement for today.
And I request you to kindly take this event forward. Over to you, sir. So thank you, Archana. No, and as I mentioned to Archana, that the ambition is that how can you make a difference to a grassroots level? And then speaking to my team, I said, how can you represent that? And they made a small corporate AV for this campaign, no, in terms of how they want to make a difference to it. So request the team to play the small AV first, and then we take our discussions forward. हॉकी के सामान का पैसा कहां से आएगा? तू हॉकी कोचिंग जाएगा तो शॉप में कौन बैठेगा? ओ पुत्र, मैच खेडन जाएगा तो खेती कौन करेगा? तेरा प्यो। इतने घने ऊंचे सपने ना देख, यो ना पूरे होंगे। पिछले 20 सालों से बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को क्लेम सपोर्ट के जरिए जिंदगी के गेम में बनाए रखा है। अब हम देश के कोने कोने से काबिल बच्चों को हॉकी की ट्रेनिंग, कोचिंग और इक्विपमेंट के सपोर्ट द्वारा गेम में बनाए रखेंगे। आप जब भी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदेंगे, उसका एक हिस्सा जाएगा कई टैलेंटेड और जरूरतमंद बच्चों के हॉकी का सपना सुरक्षित करने में। Thank you. I would request Rani to come on the stage. No. Thank you, Rani. Such a pleasure to have you with us. No, it is such an honor to have you with us. Rani, एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ ना, जब आप मेडल इतना क्लोज से मिस किए और आपके इमोशंस नो, आए हम सब ने देखा पूरे देश में और बहुत मूव है। एंड मैंने किसी बताया नहीं, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। इमोशनल आदमी हो, हॉकी के प्रति तो बहुत ही क्लोजली देखा है। और वहीं से एक थॉट आया कि कुछ ग्रास रूट लेवल पे करना है। कभी भी जीवन में कोई चीज वेस्ट नहीं जाता है। रानी, एक चीज जो मेरी जिंदगी का ना एक सबक है, तो आपका जो वहां पे जो इमोशन था, जो आपका पैशन था, और जिस तरह आपने ना वो स्टेटमेंट दिए थे कि हम मेडल लेके आएंगे, और जिस तरह पूरा देश आपके साथ था, और जब आप वहां स्टेज पे पहुंचे नो, तो उसका नतीजा आज जो इवेंट है उसका नतीजा है जो यहाँ से है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने जर्नी के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, ओलंपिक के उस लास्ट नो मोमेंट के बारे में जब आप वहां पे थे? First of all, thank you तपन सर and पूरी बजाज आलियांज टीम का कि मुझे आज यहाँ पे अपनी टीम का मेंबर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। एंड आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तपन सर, हमारी कंट्री को पीपल लाइक यू, हमारी कंट्री को बहुत ऐसे लोग चाहिए। जैसे आपने ऑलरेडी बिगनिंग में बोला कि टैलेंट की कमी नहीं है हमारी कंट्री में। बहुत बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट उनको मौका नहीं मिल पाता, या वो उनको जो बचपन में चीजें चाहिए होती हैं, लैक ऑफ जैसे इक्विपमेंट्स लगा लो या कुछ, अगर वो मिल जाए तो मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पेशली मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आप अपनी स्कूल टीम में मतलब कैप्टन होते थे, आपने भी हॉकी खेली है, एंड वो पैशन आप में दिखता है कि जो आपने अभी शुरुआत की है केयर फॉर हॉकी के लिए। एंड स्पेशली आपने एटलीस्ट हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया कि हम वहां तक पहुंचे, और आपने रिकॉग्नाइज किया कि इतना इजी नहीं है वहां तक पहुंचना, और अगर पहुंचे हैं तो इतनी क्लोजली हमने वो मेडल मिस किया तो बहुत दुख लगता है। बिकॉज जब आप इतनी क्लोजली मिस करते हो, आपको सेम एफर्ट डालनी पड़ती है जो जिसने मेडल जीता है उसकी तरह। अगर आपने मिस भी किया तब भी आपको एफर्ट सेम डालनी पड़ती है। बट अगर कोई रिकॉग्नाइज करता है तो बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट हम इतने क्लोज गैप से रह गए, बट आपने इंश्योर किया कि जो आने वाले बच्चे हैं वो इतनी क्लोज गैप से ना रह पाए, उनको एवरीथिंग दी जाए। जर्नी इतना इजी नहीं था यहाँ तक पहुंचने के लिए। सबको पता है कि मैं कैसी एक फैमिली बैकग्राउंड से आई हूँ, कि मैंने भी ये सब चीजें बहुत फेस की है, कि जहाँ पे खेलने के लिए आपके पास शूज नहीं है या स्टिक नहीं है खेलने के लिए,
पता नहीं आपको घर में 3 टाइम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक टाइम खाना खा लिया, यू डोंट नो कि सेकंड टाइम मिलेगा नहीं। तो ये सब चीजें मैंने फेस की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली ना कि एटलीस्ट हॉकी के लिए आप लोग आगे आए, और हॉकी के लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो आप लोगों को देख के और भी कॉर्पोरेट्स जो हैं वो डेफिनेटली आगे आएंगे, कि ताकि हम आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सके, ताकि उनको वो सब फेस ना करना पड़े जो एटलीस्ट हम लोगों ने किया है। नहीं रानी, आप जानते हो ना, जब जब आप वो मिस किए तो मैं आपके बारे में बहुत पढ़ा, और एक चीज जो मैं देखा ना कि आपकी जो ख्वाहिश थी जीवन में कुछ करने की, आपकी जो ख्वाहिश थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तकलीफ हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे दूध उतना नहीं हो जितना आवश्यकता हो, बट आपकी ख्वाहिश थी कि जीतना है। और वो आपके स्टेटमेंट से मैं पढ़ रहा था मीडिया में ना, जैसे मैच प्रोग्रेस हो रहे थे, वो दिख रहा था कि एक जज्बा था कि जीवन में ना कुछ करना है और आगे बढ़ते रहना, चाहे तकलीफ हो चाहे कुछ, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। एंड इसी में मेरे दिमाग में आया कि इशू ये नहीं है कि हम बड़े लेवल पे क्या करें, इशू ये नहीं, वो तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे लोग आएंगे जो सामने आएंगे। इशू ये है कि जब किसी ख्वाहिश हो, आप जैसे किसी बच्चे की ख्वाहिश हो, वो ख्वाहिश इसलिए ना मर पाए कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। तो ये एक छोटी सी इसी का प्रयास था रानी, और आप उसके लिविंग एग्जाम्पल, और आप जैसे लोग ही आई थिंक करोड़ों बच्चों को उम्मीद दोगे कि जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर ख्वाहिश है और तमन्ना, और गिव अप नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। आई थिंक वो इशू है। अब रानी, अगर हम देखें, आप इतने सारे अवार्ड जीते हो, मतलब अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, मतलब कैप्टन इंडियन हॉकी टीम, यंगेस्ट प्लेयर टू मेक डेब्यूट, 14 साल की उम्र में आपने ना ज्वाइन कर लिया, 6 साल की उम्र में आपने शुरुआत कर दी थी। मतलब जो आपकी जर्नी देखता हूँ मैं, आई थिंक जितने भी मैं स्पोर्ट्स पर्सन देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा, उनमें आप सबसे बड़े रॉकस्टार निकलते हो रानी। मतलब एक एक कम उम्र से लेके, मतलब एकदम जब आदमी होश संभाल रहा है तब से लेके अभी तक जो आपने किया है, बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहा है। तो कभी कभी जब मन में आपकी शंका इस तरह की नहीं आती थी, या सोच नहीं आती थी कि अब नहीं हो पाएगा, या जब अवार्ड मिलते थे तो कैसा लगता था कि आगे बढ़ना है, ये कुछ बताएंगे, जैसे कुछ बच्चे अगर सुन रहे हो आपकी बातें तो उनको थोड़ा इंस्पिरेशन आए। सर एक्चुअली क्या है ना कि जब आप कोई काम शुरू करते हो ना, तो स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग होता है, और इवन मिडल में भी बहुत चैलेंजिंग होता है। जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो तो सबको बहुत इजी लगता है कि ठीक है उसने कुछ अचीव किया, बट वो अभी तक की जो जर्नी थी वो इतना इजी नहीं था, और बहुत टाइम ऐसा आता भी था कि मुझे लगता था कि मैं मतलब जो मैं करना चाहती हूँ वो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, ये था कि मेरे अंदर ना एक पैशन था बचपन से ना कि मुझे कुछ करना है। मतलब जिस मैं फैमिली बैकग्राउंड से आई ना, तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैंने भी कुछ नहीं किया ना लाइफ में, तो देन जो स्ट्रगल मेरी फैमिली ने अभी तक किया ना, वो नेक्स्ट लाइफ में मैं भी वही स्ट्रगल करूंगी। देन हमारे बच्चे भी वही स्ट्रगल करेंगे। और अगर आप लाइफ में आए हो तो उसका कुछ यूज करना चाहिए, बिकॉज आई नो, मैंने बचपन से एक चीज सीखी है कि आपकी अचीवमेंट गरीबी अमीरी पे कभी डिसाइड नहीं होती, अगर आपके अंदर काम करने का जुनून है। अगर मैं भी बचपन से यही सोचती कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ तो मैं नहीं कुछ कर सकती, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कुछ कर सकते। भगवान ने हमें एक अच्छी बॉडी दी है, एक सोच दी है करने के लिए। तो अगर हम मेहनत करें तो हम भी बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है एटलीस्ट ना। तो मुझे लगता था कि वो चीज शायद मेरे अंदर उनसे ही आई है कि मुझे भी मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है, कि मैं मेहनत करूं। और जैसे आपने बोला कि कभी भी जिंदगी में कोई चीज वेस्ट नहीं जाती, अगर आप दिल से उसको करो ना, काम को ईमानदारी से करो। तो मैंने भी वही सोचा है, एंड धीरे धीरे मैं चीजों को अचीव करती गई, कि जैसे मैंने बचपन से शुरू किया, फिर मैं नेशनल्स में खेली, फिर मैं नेशनल कैंप में आई। नेशनल कैंप में आने के बाद मुझे 2011 में रेलवेज में जॉब मिली, एंड जॉब भी मैं जूनियर क्लर्क की भी मैंने जॉब की है, जहाँ पे मुझे 10,000 रुपीज मिलते थे सिर्फ। एंड देन उसमें आपको पूरी फैमिली भी चलानी है। इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये चीज बोलते थे, जो बिगनिंग में है वो सीवी में मैंने देखी, कि इतने बड़े सपने मत देख कि पूरे नहीं होंगे। तो आई एम ऑलवेज की मेरे को बचपन से था कि मुझे एक अच्छा घर बनाना, बिकॉज हम एक कच्चे घर में रहते थे और बारिश आना तो पानी आ जाना घर में। मैं हमेशा अपनी मम्मी और पापा को बोलती थी कि मैं एक दिन तो लाइफ में कुछ ऐसा करूंगी कि मैं एक अच्छा घर बना सकूं। एंड मेरी मम्मी ऑलवेज यूज टू से ना कि किसी के महल को देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए।
एंड लाइक कि मम्मी आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो, मतलब ना हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ऐसे लाइफ हमने बहुत कुछ, मैंने भी दूसरों से सीखा कि अगर बाकी दूसरे प्लेयर्स कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जस्ट आपको अपना पूरा जो मन है ना वो ग्राउंड में डालना है, कि आपको पूरा एक सिंगल फोकस माइंड होता है ना, कि आपको लाइफ में करना क्या है पहले वो डिसाइड करना चाहिए। डिफिकल्ट था, बट हाँ मुझे अच्छे लोग भी मिले लाइफ में कि जिन्होंने मुझे हेल्प किया बहुत इस जर्नी तक पहुंचने के लिए, ये सब चीजें अचीव करने के लिए। मेरे कोचेस हो गए, टीममेट्स हो गए, एंड फिजियो डॉक्टर्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस जर्नी में हेल्प किया है। सो मैं सबका थैंक्स करती हूँ। इवन जिन्होंने मुझे क्रिटिसिज्म भी दिया इस जर्नी में, मैं उनका भी थैंक्स करती हूँ, क्योंकि दे आर द वन की जिन्होंने मुझे पुश किया ये करने के लिए ना। अगर वो मुझे चैलेंज ना देते तो शायद मैं अपने आप को पुश भी ना कर पाती। क्या बात है रानी। आई थिंक 3 चीज बहुत क्लियर निकल के आती है। पहला चीज ये है कि बड़े सपने तो देखना है, चाहे कोई भी बोले, चाहे अपने पेरेंट्स बोले, बड़े सपने देखना है। तो हर व्यक्ति को एक थिंग ये में से बहुत स्ट्रांग है, सपने बड़े देखिए, घबराइए नहीं, रास्ता तो निकलेगा। दूसरी चीज जो बिल्कुल। रानी ने कहा कि लोग आए मदद करने के लिए, नो, और रास्ता दिखता चला गया जैसे बढ़ा गया। और तीसरा जो जो फैमिली सपोर्ट है, जैसा है, चाहे आप रईस हो चाहे गरीब हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं है आपके जीवन में सक्सेसफुल होना या आपको कुछ कर दिखाने के लिए। आपका जज्बे में सब चीज है। इसी बात पे बिल्कुल। मैं एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे रानी ने बताया कि उनको मदद मिली सही सही समय पे, उनको लाना चाहता हूँ क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत बड़ा रहेगा। वो है श्री अरमुगम जी, आई थिंक 1000 हॉकी लेग्स के जो एनजीओ चला, उन्हें आईआईटी से पढ़े हुए, सिविल सर्विस यूपीएससी में क्लियर किया, सरकारी नौकरी में थे, अच्छी नौकरी में थे, छोड़ के स्पोर्ट्स में आए। और अब स्कूल के बच्चों को, और जो जिनको जिनको इस फैसिलिटी चाहिए, जिनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है कि उनके पास अफोर्ड कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इतना काम कर रहे हैं कि एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट हमारे लिए संभव नहीं था जब तक हमारे पास कोई पार्टनर न हो जो इस चीज को ट्रांसलेट कर पाए, जो हमारे सपने हैं हो पाए। इसीलिए हम इनको बुलाना चाहेंगे। अरुमम जी, आप तो 2-3 वार्तालाप किया, इसके पहले भी डिक्लेयर इट ओपन, रिक्वेस्ट हिम टू कम ऑन द स्टेज प्लीज। Arugam ji, it is such an interesting story for you, no? I think you have won so many awards for your contribution. बट मतलब आज देखें, मतलब हम लोग बहुत सी कहानी सुनते हैं कि हमारे देश के बच्चे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन पढ़ के, आईआईटी से या ना आईएम से पढ़ के विदेशों में बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओज बन गए, या यहाँ पे आपका करियर ऐसे ही बहुत अच्छा था, आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, यूपीएससी क्लियर किया, और आप चाहते थे बहुत बड़ा अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं पे नाम बना सकते थे, करियर भी अच्छा चल रहा था आपका। देन सडनली व्हाई डिड यू डिसाइड टू ड्रॉप ऑल दिस and do something so very different, like set up 1000 hockey legs, the Hockey Citizen Group, and obviously you got a lot of recognition for it, but that came in later. But the decision to switch to something like this, when you're at the peak of your career, is something that really intrigues me a lot, and can you just speak a bit about it? Good morning to you, sir, and good morning to Rani also. Sir, देखिए, in lighter way, I can put it this way. Once you see a hockey match, it becomes your life sentence. You can't come out of it. You have to undergo it. You see your life. You were a hockey captain. Then you grew, changed your from science to corporate world, but you have become captain in the new industry which you have chosen. So the success brings also many more happiness like that. But for me, whatever I have been in the engineering side or geologist, I studied that side. It was a choice of mostly my parents. So when I grew up and matured, I have to make my own choice. So my choice was hockey. Why that hockey? As you have rightly asked, आप hockey क्यों choose किए हैं? What is the turning point आपने पूछा था? वो ये है 2008 में जो इंडिया का जो ग्लोरियस हॉकी हिस्ट्री था वो थोड़ा ब्रेक हुआ है। रेगुलर जो गोल्ड जीतने वाला इंडियन टीम जो अपने दादा ध्यानचंद का नाम लिए हैं, इतने बड़े बड़े लोग जो नाम लिए इंडिया हॉकी को, स्पोर्ट्स को वर्ल्ड में जो नाम दिए हैं, आपको आश्चर्य होगा 1936 में जब हिटलर ने ओलंपिक्स जो ऑर्गेनाइज किया था, उसने उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इंडियन डोंट नो हाउ टू वॉक, इट्स द ब्रिटिशर्स हु टॉट देम हाउ टू वॉक। ये स्टेटमेंट उस जमाने में बहुत बड़ा आया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर जगह इसका डिस्कशन हुआ था। इंडिया का इमेज इतना लोअर किया हुआ था लोगों ने दुनिया में,
मगर जानचंद जैसे लोग आके दे बीट जर्मनी एंड देयर ओन सॉइल 8-1 करके इंडिया का हॉकी करके एक चीज है, दे आर द प्लेयर्स, दे आर द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल ऑन द अर्थ करके जो प्रूव करने के इंस्ट्रूमेंट लिया है हॉकी का, वो जो ट्रेडिशन था ये 2008 में ब्रेक हुआ है। हम लोग क्वालिफाई भी नहीं हो पाए। वैसे आप रानी का हिस्ट्री भी देखेंगे, उनका फर्स्ट इंटरनेशनल मैच भी जो हुआ है ओलंपिक्स क्वालिफायर में हुआ है, हम लोग उस टाइम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, जो कजान में वो टूर्नामेंट हुआ था, ये बच्ची 14 ईयर्स का थी, वो एक मैच खेल रही थी कजान में, मैंने आंखों से देखा है इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए। वो कैसे ग्रोथ हो के जो ऊपर आई है वो बाद में हम देखेंगे। मैंने जो चेंज किया है 2008 में जब इंडिया क्वालिफाई नहीं हुआ है, देन आई थॉट, जैसे आप अभी सोच रहे थे इंडियन टीम ब्रांड्स नहीं कर पाई है, कौन सा मिसिंग है, वो अब वो गैप को फिलअप करना चाह रहे थे। सेम वे मैंने सोचा था 2008 में हम थोड़ा जर्नलिज्म करके आ रहे थे, आर्टिकल लिख रहे थे, क्रिटिक बन गए थे। फिर मैंने अपने आप को पूछा है, हम तो सबको सवाल उठा रहे हैं हॉकी के लिए क्या क्या है, फिर मैंने पूछा है हमने क्या किया है। फिर मैंने सोचा सबसे जो सिंपल काम है वो करते हैं, वो है स्कूल में जाके हॉकी स्टार्ट करते हैं। मेरे को honestly speaking उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था, what I thought the simplest thing was the most complex thing. It's not easy to run hockey team in the schools. रानी को तो ठीक पता ही होगा, बहुत सारा चीज होता है। आप एक बिल्डिंग भी बना सकते हैं, एक कैसल, हॉकी कैसल बना सकते हैं स्कूल में। ये एक टीचर चेंज होगा, एक प्रिंसिपल चेंज होगा, एवरीथिंग कम्स बैक टू जीरो। सो बहुत सारे कठिनाई होती है। एनीवे सर, जिस वे जो आपने पूछे हैं सवाल, मेरा जवाब ये है, जो 2008 में इंडिया क्वालिफाई नहीं हुआ था वो बड़ा शॉक था। फिर मैंने जो हॉकी को कंट्रीब्यूट करने का शुरू किया है, जो स्टार्ट किया है छोटे लेवल से, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, मैं टैलेंट ढूंढते गया, आप जैसे लोग मेरे को ढूंढ निकाल दिए। रोगम जी, आई थिंक दोनों की कहानी एक ही है, ओलंपिक से शुरुआत होती है, आपकी 2008 की, हमारी अभी की। तो आई थिंक डिफरेंस तो तभी मैं कहता हूँ जिंदगी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। कोई भी चीज देखता है आदमी, कोई ना कोई सोचता है कुछ करना। और देखिए, जैसे मैंने टीम को बोला कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डिफरेंस कर सके, तो हमारी कॉम्पिटेंस नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई दे कुड फाइंड यू बिकॉज़ ऑफ ऑल द ग्रेट वर्क यू हैव डन। बट एक चीज मैं देख रहा था आपके उसमें, जो आपने सब कंट्रीब्यूट किया है, कि जो मेन हैं या जो बॉयज हैं, उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है गर्ल्स के मुकाबले। नो रोगम जी, उसको तो करेक्ट करना होगा ना। अब रानी जैसे चैंपियन अगर और बनेंगे आगे चल के, और बच्चे इतना सपने देखेंगे, तो उसके बारे में क्या सोचना है आपका? ऐसा क्यों वो दिख रहा है हमें? देखिए सर, मैंने 2008 में स्टार्ट किया था, मेन के लिए स्टार्ट किया था, मगर आप मेरा जो दूसरा लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, जो मेरा जो डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी था, मैंने उस लाइन छोड़ के मैंने जो हॉकी में आया है, मेरा जर्नलिज्म, हिस्ट्री मेरा पैशन था। रानी मेरा सबूत है। ऐसा एक टूर्नामेंट नहीं है विमेन हॉकी का मैंने नहीं गया, नहीं देखा हो, नहीं लिखा हो। जैसे 2008 में इनको जो डेब्यू हुआ था, इंडिया से एक ही जर्नलिस्ट गया था, मैं गया था। वैसे मेरा हार्ट हमेशा विमेन हॉकी में रहा है। जैसे 2016 में उनको जो अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड जो रानी को मिला है 2016 में, अर्जुन अवार्ड मिला है। गॉड वाज सो काइंड, उसी दिन में मेरे को एक ही अवार्ड मिला, उधर ही मिला है, उसी दिन उनके साथ ही मिला है। सो जो विमेन हॉकी जितना जो कवर किए हैं, मगर उसी को एनजीओ में विमेन को क्यों ट्रांसलेट नहीं कर पाया? एक बड़ा चीज ये है, आपका हार्ट और पॉकेट साथ साथ रहता है, मगर अंदर बहुत है, डिफरेंस बहुत है। हॉनेस्टली स्पीकिंग, अभी का जो एग्जिस्टिंग सोशल मिलियो में आप 10 प्रिंसिपल के बाद जाएंगे, हॉकी टीम मेन को स्टार्ट करना है, 1 out of 10 प्रिंसिपल विल एग्री। सेम थिंग यू गो टू द विमेन्स स्कूल्स, 30 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल भी एग्री नहीं करेगी। विद लॉट ऑफ डिफिकल्टी यू विल गेट देम कन्विंस्ड, बिकॉज दैट इज द सोशल सेटअप। उसको बहुत सारे फैक्टर्स है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, एवरीवन अवेयर ऑफ इट। बट आफ्टर द फर्स्ट pandemic, I started women also. I started 3 schools in Delhi. So it is going very well. I'm very much impressed the way I could do it. One of the most important condition for any principal to agree to start a girls team is bring a women's hockey coach. India में कितना women's hockey coach है देखिए अभी. So there are challenges ahead. That's why, though my heart was with the women's hockey always, so I proved wherever I can. But on the ground for schools, NGO like that, there was a lot of challenges and hurdles.
The main was fun. Another thing, the principals want the girls should be taken to the practice pitch, turf, the school hours by a transport. How can I afford to that transport? If they are training at least for 100 days in a year, I have to take the girls' team. For example, if there are 6 schools or 10 schools, the transport was a big issue, especially like, I am working among the urban poor and the migrant labor section. In Delhi, the D stands for distance. You have to travel long distance to go to any of the hockey ground. So these are all the challenges. I could not do it. But last year I have decided to do it. I have started it. Hopefully I will be successful. Now with your, a hockey-minded person in the picture and personalities like Ronnie to motivate the girls, I think now sky is the limit. Exactly, Arumugam ji. इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि अब रानी तो I think she is the torch bearer, no, and I asked her to speak on this. बात करने को कहूँगा कुछ. अब I think the women hockey players that you're looking for, no, in the schools, they're more open to this idea. Coach, transportation solve करना है, but उस पे भी काम करना. आपने इतना काम किया है, and I'm so happy to hear कि you've already started this process, and we take it forward. So रानी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गम सर, रियली अप्रिशिएट जो आप हॉकी के लिए कर रहे हो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने वुमेन के लिए भी स्पेशली शुरू किया है. आई नो आपका हार्ट हमेशा वुमेन्स हॉकी में रहा, आपने बहुत कुछ लिखा वुमेन हॉकी के लिए, एंड इवन मेरी जर्नी के भी आप विटनेस रहे हो जब से मैंने शुरू किया है. तो रियली अप्रिशिएट जो आप कर रहे हो, एंड कीप डूइंग. और हम आप लोगों के हमेशा साथ हैं, और बच्चों के लिए तो हमेशा ही, क्योंकि हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एंड आई रियली वांट टू हेल्प. जो भी आपको बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी चाहिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए, बिकॉज आई नो जो आपने बोला ये प्रॉब्लम्स वुमेन्स फेस करते हैं, क्योंकि वुमेन्स के लिए इतनी जल्दी कोई स्कूल्स वगैरह में एग्री नहीं करता कि कि ठीक है खेलने दो लड़कियों को, क्योंकि मैंने भी सब फेस किया है. अनफॉर्चुनेटली मतलब चलो मैं तो लकी थी, मेरे पास कोच ऐसे थे कि जो वुमेन्स के लिए ही काम करते थे, बट ये प्रॉब्लम्स होती हैं. सो कीप डूइंग द गुड वर्क, एंड जैसे इन्होंने बोला कभी कुछ वेस्ट नहीं जाता. अभी तक आपने जो किया आपको उसका रिकॉग्नाइजेशन मिला है, और बच्चे भी जो जिनके लिए आप काम कर रहे हो आपको हमेशा याद रखेंगे कि आपने शुरू किया था उनके लिए. थैंक यू रानी. देखिए अरुण जी, ध्यान सोचें कैसे जिंदगी में किसी मोड़ पे लोग इकट्ठा होते हैं. एक ओलंपिक्स के कारण आपने शुरुआत किया, एक कारण हमने शुरुआत किया. वुमेन अब अगर प्रोत्साहन करना है गर्ल्स को, बच्चों को अब रानी की स्टोरी आई थिंक लाखों बच्चियों को प्रोत्साहन करेगी. आपका इंटेंट उसके तरफ है. तो कभी कभी जिंदगी में अगर आप जोड़ना शुरू कर देना, जो जॉइनिंग डॉट्स जिसे कहते हैं, then something big happens. I think that is what it is. How do you feel about this association? जो हम लोग ये सब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या फीलिंग है? Do you think it's going the right direction? Do you think it's going to really make a difference? It's certainly going to make a difference. You see, जैसे आपने को डॉट्स को जो छोड़ेंगे, it becomes a big diagram and big figure like that. You see, it so happened we all the meeting of mind is here. We are all our minds are meeting in the same place. I think we can take it in a big way. I will tell you, I keep going to schools. The age group I begin with is 10 to 11 years. I ask them just name one hockey player. Just to introduce a game, I ask, you tell one hockey player. Among the girls, 10 out of 10 will take Ronnie's name. So happy to hear this. The other name that comes to their mind is, John Chand and Tanraj Pillai like that. But present day, I will tell you, Ronnie is the face of not just women's hockey, she's a face of Indian hockey. She's actually, I don't know, Rani, aapko pata hai, nahi pata hai, your image gone deep into the grassroots level, because of this Tokyo. Before that one single goal that took us to Tokyo, the qualifier goal, sabne dekha hoga. I was also present there. In Tokyo also, I was fortunate enough to present, cry with the team, So this name is going to create really a lot of motivation among the girls. If, for example, I tell my girls, today I was with Rani Rampal, I was speaking to her. So many girls and boys will surround me. Is it her? They won't even believe. For them, she is something star. ऊपरे है, स्काई में है. अगर एक दिन वो आपका ग्राउंड में आएगी, बच्चों को देखेगी,
I think that is going to create a lot of imprint in their mind. It's going to change their perspective, then the way they look at their life. Now they are the profile I am working. Basically, they have a contented life. Coming back to the same thing, they don't dream. Their dream is get into marriage, have a decent life, save the honor of the family. It goes like that. So ड्रीम करो करके उनको एक सपना भी देना पड़ता है, ये आप कर सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हॉकी स्टिक के साथ एक फोटो खींच के उनको किताब में रखो करके हम देते हैं, सो यू कैन बी अ प्लेयर, उनको फोटो खींच के बड़ा पोस्टर बना के क्लासरूम में लगाते हैं, क्लास बच्चों को उनको दिखाते हैं, शी इज अ हॉकी प्लेयर, ही इज अ हॉकी प्लेयर। उनको लगता है वो, फिर हम स्टेडियम जा सकते हैं, खेल सकते हैं। गेम भी करके एक चीज है, हम उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो पेरेंट्स यही बोलते रहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अकेडमी में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। सो वी ओपन द अदर एवेन्यूज, दिस 1000 hockey legs, it opens a new avenue for their recreation, along with recreation education and sports to go together, not at the cost of each other or just independently. You are very good at education, that's why now you are heading a company, you are captain of the whole series of institutions. Without education कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, but education के लिए don't sacrifice your life, you have your ambitions, you have your dream, ये हर चीज उनको सिखाना चाहते हैं। उनको हमेशा एक एग्जाम्पल दिखाना होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, रानी को दिखाऊंगा। I think my kids will be very, very happy to be in this atmosphere. I think it should flourish. Thank you, Raghuji. I think that was very, very motivating. And like you rightly said, I think रानी पे अब जिम्मेदारी खाली खुद की नहीं है, और खुद के परिवार की नहीं है, देश की बच्चियों बच्चों की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। तो जिंदगी में जब आदमी कुछ हासिल करता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। जी, जैसे आपने बताया अभी, रानी क्या लगता है आपको इस जिम्मेदारी को, मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लग रही है? आप जैसे आपने कहा कि ये भी देख लेंगे, सपना तो बड़ा है ही है, ये सपना ही पूरा करेंगे, एक दिन देश को मेडल तो लेके ही आएंगे, तो आप गोल्ड लेके आएंगे, ब्रॉन्ज मिस हुआ तो क्या हुआ, अगली तैयारी गोल्ड की। क्या लगता है आपको इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत कुछ बनाती है लाइफ में। एंड मैंने बचपन से एक चीज सीखी है, अपने पेरेंट्स से सीखी है एंड कोचेस से सीखी है कि जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए। अगर कोई जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाना चाहिए, जो बेस्ट पॉसिबल वे में आप निभा सकते हो। सो अभी तक मेरे ऊपर मेरी खुद की जिम्मेदारी थी कि मुझे खुद एक अच्छा प्लेयर बनना है, कंट्री के लिए मेडल जीतना है। एंड फैमिली की जिम्मेदारी थी कि मुझे एक फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है। एंड नाउ जैसे आपने बोला कि अभी और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है कि अभी और भी हमने ब्रॉन्ज मेडल मिस किया, कि अभी हमें स्टिल ड्रीम अभी भी वही है कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, क्योंकि वो अचीव नहीं हुआ अभी तक ना। एंड साथ साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ जाती हैं। जैसे आरमुगम सर ने बोला कि मैं भी किसी को देख के इंस्पायर हुई थी हॉकी खेलने के लिए, कि मेरे टाइम पे भी जब मैंने शुरू किया कि बहुत सारे इंडिया के टॉप वुमेन प्लेयर्स खेलते थे, लाइक सुरिंदर, जसजीत, सुमन एंड ऑल, कि मैं उनको देख के इंस्पायर हुई थी कि मुझे हॉकी खेलना है, मुझे भी कंट्री के लिए खेलना है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी लड़कियां मुझे देख के इंस्पायर होती होंगी, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको कैसे इनकरेज कर सकती हूँ, एंड उनको कैसा वो बात उनके दिमाग में हम मैक्सिमम डाल सकते हैं कि आप लोग भी सपने देखो, आप अचीव कर सकते हो। नो मैटर आप किस फैमिली से आते हो, किस बैकग्राउंड से आते हो, वो मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में अचीव करने के लिए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितनी ज्यादा मैक्सिमम लड़कियों को इंस्पायर करने की कोशिश कर सकूं और उनको हेल्प करने की कोशिश कर सकूं। Thank you, Ms. Rani. Over to you, Archana, to take this forward. Thank you so much, Tapan sir. After listening to this entire conversation, I have to say कि जो energy है, commitment है, passion है, वो इस screen से बाहर आ रही है। Like मेरे seriously goosebumps मुझे आए हैं। मैं रानी से पहले भी मिल चुकी हूँ, और अभी वर्चुअली जब भी मिल रही हूँ और उनकी कहानियां सुन रही हूँ, जब वो कह रहे हैं कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, यूज करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हटना चाहिए, इनफैक्ट उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज हम सभी कर सकते हैं। और अरुमुगम सर, आप जो आपके पैशन के बारे में आपने बात की, अपने रेगुलर जॉब को छोड़कर आप हॉकी जैसे एक स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी बढ़ावा दिया है स्कूल्स खोलकर। ये सब चीजें सुनकर मैं एक लड़की हूँ और मैं इतनी इंस्पायर हो रही है, तो मेरे ख्याल से सारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, आई एम श्योर रानी उन्हें ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देगी। और ये जो केयर फॉर हॉकी कैंपेन है, वो ट्रूली इस
पूरे जो हमारा एक कमिटमेंट है हॉकी के लिए उसको पूरा करेगी। आई एम रियली हैप्पी दैट एक्चुअली एक कॉर्पोरेट है जो फाइनली कुछ कर रहा है, फाइनली डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर द गेम ऑफ हॉकी। और इसके बाद आई थिंक काफी सारे अलग कॉर्पोरेट जो है वो भी फॉलो सूट करेंगे, इनकरेज करेंगे इस ब्यूटीफुल गेम को, और rather than taking the glamorous route, actually contribute to the development of hockey from the grassroots level. So chaliye, it's been really motivating to have obviously someone like Rani. You are an inspiration to everyone, not just youngsters, but everybody that follows sport in general. So I'm sure that Rani, Mr. Arugam, Sir, Bajaj Allianz General Insurance will do a lot of justice to the Care for Hockey campaign. I thank everybody for joining. Thank you, Mr. Arumugam and Tapan sir. Thank you so much. Last but not the least, Rani, आपसे तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, रही हूँ, और आपके जो हर नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है उसको सुनकर और भी अच्छा लगता है, and I'm sure बहुत लोग इंस्पायर होंगे. So thank you for joining us today. Let's together care for hockey. हॉकी के सामान का पैसा कहाँ से आएगा? तू हॉकी कोचिंग जाएगा तो शॉप में कौन बैठेगा? ओ पुत्र, मैच खेडन जाएगा तो खेती कौन करेगा? तेरा प्यो। इतने घने ऊंचे सपने ना देख, यो ना पूरे होंगे। पिछले 20 सालों से बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को क्लेम सपोर्ट के जरिए जिंदगी के गेम में बनाए रखा है। अब हम देश के कोने कोने से काबिल बच्चों को हॉकी की ट्रेनिंग, कोचिंग और इक्विपमेंट के सपोर्ट द्वारा गेम में बनाए रखेंगे। आप जब भी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदेंगे, उसका एक हिस्सा जाएगा कई टैलेंटेड और जरूरतमंद बच्चों के हॉकी का सपना सुरक्षित करने में।